I think we are live now. Okay. It's just final touches. So, hello students, hello everyone. Welcome to Scholar. So students, today we are joined by Divankar Chaudhary. Divankar has secured rank 42 this year. In fact, what makes Divankar really special is the fact that he has cracked it for the second time in a row. Previously, he was in IPS, he was serving for Government of India, and now he has cracked into IAS. So first and foremost, welcome Divankar and very, very congratulations from Scholar team. Thank you very much. कैसा माहौल है घर पे कैसा लग रहा है आपको फाइनली क्रैक हो गया सपना पूरा हो गया घर पे सब बहुत खुश है मैं एक्चुअली घर जा नहीं पाया हूँ मैं अभी केरला में हूँ तो अभी छुट्टी मिलेगी फिर जाऊंगा देन I'll have a first hand view घर पे कैसा माहौल है बट फोन पे तो सब बहुत खुश हैं everyone is very happy. See the fact that कि आपने सेकेंड टाइम निकाला है इज इट समथिंग जो कुछ मतलब एक अलग फीलिंग है कंपेयर टू लास्ट टाइम वेल एक्साइटमेंट वही है सरप्राइज वही है बिकॉज यूपीएससी में यू नेवर नो क्या आने वाला रिजल्ट में इफ यू वर्क वेरी हार्ड यू कैन एक्सपेक्ट अ रैंक बट क्या रैंक आएगी क्या सर्विस मिलेगी वो आपको पता नहीं होता सो व्हेन इट कम्स टू एक्साइटमेंट एंड सरप्राइज इट्स द सेम फियर वाइज थोड़ा कम फियरफुल था मैं इस टाइम बिकॉज मैं समहाउ सिक्योर्ड था थोड़ा सिक्योर्ड फील कर रहा था तो वो बस एक फियर एलिमेंट का डिफरेंस है बाकी सब पिछले साल जैसे ही है. Very nice, yeah. Congratulations again. Dipankar, one of the things which really make your case very interesting is the fact that you have got this success second time in a row. और ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं मेरे भी कॉन्टैक्ट्स रहे हैं वहां पर मैंने चीज देखी है कि बहुत लोग जो सर्विस में एक बार हो चुका है उस सेकेंड टाइम उनके लिए उतना ही मुश्किल होता है टू क्लियर द एग्जाम and somewhere they say ki, oh, even though we have cleared it once but it doesn't mean that we have cracked what it takes to clear this exam, right? But somewhere the fact that not just you cracked IPS last time, you were able to better your performance this year. So I mean the way I would look at it कि आपको time भी शायद थोड़ा कम मिला होगा compared to last year to prepare for this year exam. So the first thing which I guess every student who's aspiring for this prestigious exam would want to know, हमारी scholar team would want to know, is what exactly is the secret? Secret क्या है भाई आप बताएं? So I'll tell you in briefly 4 or 5 things which will ensure that you can crack this exam for the second time. The first thing is not taking prelims for granted. Because once you write mains 2 or 3 times, आपके दिमाग में एक वो आ जाता है कि prelims तो हो जाएगा. And prelims, trust me, is the most dicey step of this examination. वहां पर margin of error बहुत छोटा होता है prelims में. तो 2-3 क्वेश्चन इधर उधर और आप लिस्ट से बाहर हो जाते हैं. So never take prelims for granted. I know interview थोड़ा unpredictable होता है, but prelims dicey होता है. आपको पता नहीं यूपीएससी क्या पूछेगी, किस पैटर्न पे पूछेगी, किस पर emphasize करेगी. The second thing I would want to say is revision. Revise as many times as you can. Instead of studying like 10 different sources, study 2 different sources, but revise them over and over again. I'll tell you one very interesting thing about revision, in my opinion. अगर आप कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं, like there are so many books in the market, so most of the book are cut, copy, paste material, compile करके वो एक किताब लिख देते हैं. But if you read something which is written by a great academic or a scholar, एक कोई अच्छी किताब, जैसे बिपिन चंद्रा की किताब है. Every time you read that book, you will realize कि उस book में आपको कुछ नई बातें मिलेगी. जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, आप सोचेंगे कि पिछली बार भी तो मैंने ये किताब पढ़ी थी, but पिछली बार मैंने ये नोटिस नहीं किया. So revise over and over again. It's very helpful. And the third thing which I would say is that, when it comes to mains, the main examination, there is a set pattern of answer writing which I had formulated for myself. And I think
UPSC needs although you have a lot of scope for experimentation in your answer, but एक certain set type के answers होते हैं जो appreciate करता है. Basically, the way I saw it, आपके answers में 3 चीजें होती हैं. आपके answers में आपका content होता है, आपके answer में आपका presentation होता है, और आपका answer का एक length होता है कि आप 15 वर्ड के लिए कितना लिखेंगे. नॉर्मली एक कॉलेज की टेंडेंसी होती है कि हम लेंथ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. 15 नंबर का है तो हम इतना लंबा लिखेंगे. लेंथ इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आंसर. कंटेंट और प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट. सो कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योर आंसर राइटिंग. बिकॉज सी आई फील कि अगर आप 2 लोग आंसर्स लिख रहे हैं और एक का कंटेंट थोड़ा अच्छा भी है, समवन इज स्लाइटली बेटर इन कंटेंट, बट दूसरे का प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा है, तो he'll score better. And do realize कि एक certain level के answers, एक certain standard के answers, जो भी इंसान prelims करता है, he is educated, he is qualified, तभी वो top 10,000 लोगों में आया है. हर इंसान लिख रहा है. So आपके answer में you need something. So ultimately in the entire UPSC preparation, you are writing almost 117 answers. Essay apart. 20 आपके प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 to 3 में, 19 आपके ऐसे एथिक्स वाले पेपर में, and 19 plus 19 in your optional paper. So what my feeling is that if you write a very good answer in UPSC, you might score 9 out of 15. But if you write an average answer or a good answer, then it's not like you're going to score 4 out of 15 or 5 out of 15. वहां भी आपको 7.5-8 मिल ही जाएगा. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक आंसर में ही 4.5 नंबर 5 नंबर का मार्जिन क्रिएट कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है यूपीएससी में. आपको हर एक आंसर में आधा नंबर 1 नंबर, आधा नंबर 1 नंबर इंप्रूव करना पड़ेगा, एंड दैट विल accumulate over a period of 100 answers or 110 answers, or that will create a difference of almost 100 marks, and that makes a huge difference. बहुत बड़ा difference create करता है. So you know, every time you write an answer, you have to fight for that half mark or 1 mark extra in every answer. चाहे optional का answer लिखें, चाहे mains का. That was the mindset with which I wrote answers. कि इस answer में मैं ऐसा क्या लिखूं, बाकी लोग जो लिख रहे हैं वो तो मैं लिखूंगा ही. That's for sure. वो तो लिखना ही लिखना है, उसमें compromise नहीं कर सकता. But उसके अलावा मैं ऐसा क्या लिखूं जो मुझे आधा नंबर या 1 नंबर एक्स्ट्रा दिलाए इस आंसर में. And the last thing I would say जो बहुत जरूरी है, not just इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, लाइफ में कहीं भी सक्सेसफुल होने के लिए, is you know, आपकी मेंटल हेल्थ और आपका डिसिप्लिन टॉप नॉच होना चाहिए. नो कॉम्प्रोमाइजेस इन डिसिप्लिन. सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करना है या टेबल चेयर पे बैठना है. नो कॉम्प्रोमाइजेस इन दैट. ये एग्जाम थोड़ा रिगरस है, थोड़ा लंबा चलता है. मैंने 2016 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और 2018 में मुझे पहली बार सफलता मिली. सो ऑलमोस्ट पूरा 16, पूरा 17, आधा 18. So 2.5 years, it becomes very difficult for people. Some people leave their jobs. So आपकी social life is compromised like anything. आपकी social life तो non-existent हो जाती है. तो you know, in that situation, take care of your mental health. Do exercise every day. मैं करता था हर दिन. Have a hobby. I had a hobby. Don't spend उस पे time waste करने की जरूरत नहीं है, but spend some time on that hobby. Keep talking to your parents, your loved ones, your close friends. That will help you a lot. Eat healthy. ये I think आपको बहुत cliched लग रहा होगा, but these things add up. Exercise can help you rewire it can help you in ways you can't even comprehend. मतलब आपको पता नहीं होता है, वो in the background आपको physically fit कर रहा होता है, mentally alert कर रहा होता है, आपके muscles को tone up कर रहा होता है. Too many things. So this is a very important thing to do. So पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, इस पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, वरना नहीं तो फिर एग्जाम शायद कैसे भी क्लियर कर भी लो, आईपीएस की ट्रेनिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी. Very nice. So, Dipankar, just to elaborate on few of the things that we discussed, one of the things that you're emphasizing on is कि जो हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, the idea is not just to write answers, but to understand what exactly are we seeking to achieve, not in one answer, but on the whole paper that you're going to write. जो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सिर्फ ये नहीं कि हमारा आंसर में कितना ही अच्छा लिख दे, क्योंकि अगर हम वो अक्रॉस 100 आंसर्स नहीं कर पाते हैं तो शायद वो इफेक्ट ना रहे. आपके एक्सेप्शनल आंसर को इतनी वैल्यू नहीं मिलती जितनी कंसिस्टेंट अच्छे आंसर को वैल्यू मिलती है. राइट, दिस इज वन पॉइंट, दैट्स वन टेक अवे which I guess a student should focus on. It's not just about writing few exceptional answers, it's about consistently writing good answers and completing your paper.
right? True that. Paper complete करना is important. Means it's very important. I think हर पेपर में एक आध ऐसे सवाल आएंगे जो थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स टाइप के होंगे. वो मे बी अफ्रीका में डीकोलोनाइजेशन या साउथ ईस्ट एशिया में कुछ या साइबरडोम प्रोजेक्ट पूछ लेंगे. So that was very tough. That was tough. As a matter of fact, it's a Kerala project. और जब अभी मैं केरला में posted हूँ, I started working on that project as an IPS Very trainee. interesting. Very So interesting. when I was telling to one of my seniors at DIG, that's a UPSC asked about Cyberdome project, and he was very happy. He said that's our biggest success. UPSC हमारे Cyberdome project में बात कर रहा है. And it's very interesting. You were working on something, and that was in fact one of the tougher questions that got asked in UPSC. वो बहुत ही यहाँ interesting आकर मैं आपकी बताया. उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाया Cyberdome project को. Okay. So yeah, that's true. Consistency बहुत important है आपके आंसर्स में, और पेपर कंप्लीट करना भी बहुत important है. एक दो आउटलायर क्वेश्चंस हैं, वो सबके खराब जाएंगे, उसके बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना है. बट जो 18-19 आप लिख रहे हैं उसमें लाइक आई सेड हर क्वेश्चन में मार्जिन बनाना है आपको. 1-1.5 नंबर, आधे नंबर का हर क्वेश्चन में मार्जिन बनाना है. और जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, दिस इज व्हाट वी शुड बी फोकसिंग ऑन. इट्स नॉट जस्ट राइटिंग 4-5 exceptional answers. It's about how well you are able to be consistent in terms of writing good answers, very good answers. True. Very right, very good point, in fact. So one of the challenges which such a strategy would have for the student is how exactly will he be able to balance all the subjects, क्योंकि इतना डायनेमिक है पेपर. इतने सारे इकोनॉमी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है. सो एंड आई थिंक जो एक्सपीरियंस टीचिंग का रहा है, मैंने ये देखा है कि फॉर एवरी पर्सन हु इज ईदर गेटिंग सिलेक्टेड और फॉर दैट मैटर इज प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड, उनके 1 या 2 सब्जेक्ट थोड़े टफ रहते हैं, बट इन द सेंस कि उनकी बहुत कमांड नहीं रहती उन सब्जेक्ट पे उनके लिए. Right. तो द फर्स्ट थिंग इज कि आपके साथ भी ऐसा था कि कुछ 1 या 2 सब्जेक्ट वो थे जो आपको लगता था tricky for you compared to when you look at others? And secondly, how exactly were you able to bring balance, that parity in terms of ensuring that there is a sustainable way to go about in terms of preparing everything? See, as far as subjects in which I had a good command go, GS paper 2, अगर मैं mains की बात करूँ, not CSAT, GS paper 2, I had a good command over that paper. Okay. I had good command over economics. Okay. And there's a reason behind this. मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो वो पूरा इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस वाला पार्ट जीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर 2 है ऑप्शनल का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें कवर हो जाता है. तो वो मैंने Sorry to cut you. अगर आप देखें paper 2 or GS2 has been slightly more public administration as compared to public administration paper 2. Right. True that. And the another advantage जो मेरे को मिल गया, I got lucky in that matter, I would agree to that, is that even economics, so public administration में you have an entire unit called financial administration. तो उसमें आप monetary policy, fiscal policy, काफी डिटेल में उसके ग्राफ्स, disinvestment, public sector units, you study that in quite depth. तो उसका भी एडवांटेज मुझे मिल गया. तो ये मेरे स्ट्रेंथ एरियाज थे. प्लस जब आप एथिक्स का पेपर लिखता था मैं, तो एथिक्स में जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट हो गया, फॉर इंस्टेंस प्रोबिटी इन गवर्नेंस, इंटीग्रिटी, सीबीसी, लोकपाल, आरटीआई एक्ट, ये सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ओवरलैप करते हैं, तो उधर फायदा मिला मुझे. इसके अलावा मेरा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. somehow मुझे वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था, तो मैं उसको काफी ज्यादा पढ़ता था. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड. डिबेट्स वगैरह इंडिया में काफी पोलराइजिंग डिबेट्स हो जाते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेके, तो मेरे को आई हैड दिस थिंग कि मैं जानूं कि एक्चुअली में चक्कर क्या था, कौन लेफ्ट को था, कौन राइट को था, कौन सेंटर में था. तो modern Indian history, I was good at that. आपको अगर I know it's very difficult and tedious to study so many things. तो अगर आपको मैं एक प्रायोरिटी लिस्ट दे सकूं, एंड ट्रस्ट मी, ये प्रायोरिटी लिस्ट मेरी खुद की बनाई हुई है, आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स you should be focusing on polity, on economics, on environment, on modern Indian history. इसके अलावा बाकी भी important है, I won't say क्या बाकी पढ़े ना, बाकी इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, ये थोड़ा मतलब you can keep them as your second priority. कुछ एरियाज थे जो मेरे बहुत वीक थे. वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी ठीक से पढ़ के नहीं गया, वो भगवान भरोसे था कि भिड़ गया तो भिड़ गया, नहीं तो ठीक है. सिमिलरली साइंस एंड टेक, science, though I come from an engineering background, but UPSC ka science and tech is very different. It doesn't matter if you're an engineer or a doctor or a scientist, even for that matter. UPSC ka science and tech is very different.
तो उसमें भी मेरा ये था, भिड़ गया तो भिड़ गया, नहीं तो फिर ठीक है। तो फोकस ऑन द कोर एरियाज, एंड बाकी एरियाज में आप करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करें, खास करके इंटरनेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल इश्यूज, इन सब पे करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करें। इनकी इन डेप्थ स्टडी कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, बट बाकी एरियाज की इन डेप्थ स्टडी आप कर सकते हैं। So to put it differently, जो आप कह रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे आइडेंटिफाई करें जिसमें यू मेक श्योर कि इसका क्वेश्चन आया हुआ तो गलत होना ही नहीं चाहिए। फॉर I एग्जाम्पल can't hear आपने you. I कहा, lost your voice. एम आई ऑडिबल राइट नाउ? हेलो? Yes, Am I? yes, yes. It's back. Yes, yes. Just 1 second. Sure, Come sure. back later. Please do not disturb me now. Okay. So Dipankar, to put it in other words, जो आप बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि whenever you prepare, make sure कि कुछ सब्जेक्ट से अगर सवाल आते हैं उस पर आपकी इतनी कमांड है कि 90-95% एक्यूरेसी उन सब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जांपल अगर आपने पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स यू बिलीव आपकी कमांड है, वो कमांड इस लेवल की होनी चाहिए कि उससे आने वाले सवाल आप मिस आउट ना करें। जो थोड़ा वीक है उसके लिए एक रीजनेबल स्ट्रैटेजी रखे, बट Right. बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो। एटलीस्ट जो सब्जेक्ट तैयार है, मेक श्योर दैट यू आर हैविंग हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन दो सब्जेक्ट्स। आई थिंक दैट True इज व्हाट that. यू आर फॉलोइंग। True that. कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े उनका सर पैर पता नहीं चलता, जैसे आर्ट एंड कल्चर या फिर इवन साइंस एंड टेक फॉर दैट मैटर। यू डोंट रियली नो, या फिर ऐसे बहुत सारे लिस्ट आते हैं कि इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, ये इंडेक्स कौन सा पब्लिश करता है। मतलब आपको पता है तो पता है, आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, न्यूज़पेपर्स पढ़ा है, याद आ गया तो याद आ गया, नहीं तो फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बट वो प्रीलिम्स में ज्यादा रोल प्ले करता है, मेंस में ऐसा कोई खास रोल नहीं प्ले करता। तो मतलब आई गेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़े विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इंस्टेड ऑफ टू टेक टेंशन अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स, मेक श्योर व्हाट ऑल यू आर स्टडीइंग, यू आर डूइंग इट इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। True that. True. Right? Very nice, very nice, Pankaj. Pankaj, one of the things which you spoke about was that when we prepare for civil services, one of the things is how exactly can we keep ourselves motivated? हम लोग अपने focus को कैसे maintain रखें over the period of time, right? Now the challenge is कि there are days जब लोगों को बहुत ज्यादा जान आ जाती है, मतलब आज तो 12 घंटे 14 घंटे पढ़ लिया। There are days Right. कि एकदम लो आता है जिसमें लोग पढ़ नहीं पा रहे। बच्चे ऑफन ये बात कहते हैं, सर आज इस पूरी वीक पढ़ाई नहीं हुई है, इस वीक में पढ़ाई नहीं हुई है, right? So all that thing happened. So I'm so sorry about that. So all those things happened. क्या पहला तो क्या आपने भी ये challenges face किए थे? And second, how exactly you overcame those? See, ये ट्रू है। हमारा अटेंशन स्पैन काफी छोटा है ह्यूमन माइंड का, यू नो दैट, एंड विद सोशल मीडिया और छोटा होता जा रहा है, एंड हम डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाते हैं। हमारा कोई फ्रेंड जॉब कर रहा होता है, कोई आईएम में जा रहा होता है, कोई अब्रॉड मूव कर रहा होता है, सो वी कीप ऑन गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, बाकी लोग सक्सेसफुल हो जा रहे हैं। ये कांस्टेंट कंपैरिजन चलता रहता है माइंड में। एंड आफ्टर स्टडीइंग, वर्किंग हार्ड फॉर 4 or 5 days, थोड़ा रिलैक्स करने का मन करता है। देयर इज नो हार्म इन दैट। मेक श्योर कि आपका रिलैक्सेशन, मतलब ये आप पैचेस में पढ़ाई नहीं कर सकते। एक हफ्ते पढ़ लिया, फिर एक हफ्ते बिल्कुल नहीं पढ़ा, फिर 2 हफ्ते पढ़ लिया, फिर एक हफ्ते बिल्कुल नहीं पढ़ा। यू कैन टेक couple of hours off, you can take a night off कि आज शाम को, चलो आज रात को मैं मूवी देखने चला जाऊंगा किसी फ्रेंड के साथ। that is still fine, once in a week or once in 2 weeks you can do that, but patches में पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको कंसिस्टेंसी बना कर रखनी पड़ेगी। आप कंसिस्टेंसी लूज करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। How do you keep yourself motivated? How to get that consistency is the question. How to get, जब डर होता है तो मोटिवेशन आ जाता है। that is true, जब डर होता है तो मोटिवेशन आ जाता है। एंड द थिंग इज क्या ये सी, आई सेड कि आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए दूसरे लोगों से, बट कंपैरिजन भी आपको मोटिवेट करने में हेल्प करता है कि someone is doing this or someone is doing that, so I need to do better, I need to find my own place. See, I'll tell you one thing कि आप किसी को exactly copy ना करें। आप सबकी सक्सेस स्टोरी यूनिक होती है, तो आप इंस्पायर हो सकते हैं लोगों से, उनसे नॉलेज ज्ञान ले सकते हैं, बट आपको अपनी यूनिक रास्ता खुद ही निकालना पड़ेगा। मेरा ये था कि मेरे डैड, मतलब कि मुझे घर से काफी सपोर्ट मिलता था, प्लस आई हैड अ सपोर्टिंग फ्रेंड सर्कल, तो वो भी काफी सपोर्ट करते थे। कंसिस्टेंसी के लिए मेंस लिखने के बाद या प्रीलिम्स लिखने के, सॉरी इंटरव्यू के बाद, मैं 16-17 में मेंस के बाद में थोड़ा रिलैक्स हो गया, 1 महीने पढ़ाई नहीं की। बट उसके बाद जब वापस से पढ़ाई स्टार्ट की 18 या 19 के अटेम्प्ट के लिए, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी। आई टेल यू व्हाट, अब अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करेंगे, आपको डबल एफर्ट करना पड़ेगा।
जब आप छोड़ के वापस से स्टार्ट करेंगे तो आपका एफर्ट ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। तो कीप दैट इन माइंड कि द मोमेंट यू लूज कंसिस्टेंसी, आपका एफर्ट ऑटोमेटिक, वन डे, one single day you don't study or you get distracted can push back your entire career, your entire aspiration, System, your career by 1 year. strategy. That one day you gave up can push it back for another year. So it is important. Just realize कि ये 4 घंटे कहीं भारी ना पड़ जाए मेरे ऊपर फाइनल एग्जाम के दिन। So essentially what you're trying to say is कि work ethics बनाना बहुत जरूरी है and it is important कि हम लोग कुछ गुंजाइश रखें अपने आप को रिलैक्स करने की भी, पर जो हमारा ओवरऑल कंसिस्टेंसी है, जो हमारे ओवरऑल वीकली मंथली टारगेट्स है, जो अप्रोच है, उसको कॉम्प्रोमाइज ना करना जरूरी है। इसके लिए sorry to interrupt you again. Sure, sure, please, like please. like I said, मैंने बोला था 5 points which helped me crack this exam 2 times. I said discipline and work ethics is, discipline बहुत important है, लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं डिसिप्लिन की बार। आईपीएस में आओगे तो फिर आपको पता चल ही जाएगा डिसिप्लिन का क्या रोल है, बट डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Very important for this exam. आपने डिसाइड किया कि सुबह 5 o'clock उठ के मुझे रन पे जाना है, मतलब जाना है, अनलेस जमीन गिर जाए आसमान पर, जाना है मतलब जाना है। इनफैक्ट मैं यही चीज बताता भी हूँ कि what is important is your work ethics and not so much your intelligence. इंटेलिजेंस आपको एक हद तक पुश दे देगी, बट दिस एग्जाम इज अबाउट वर्क एथिक्स। आपको परफेक्ट जो डिसिप्लिन की आपने बात बोली वो बिल्कुल ठीक है कि you are being tested every day based on your work ethics and not what exactly you do in the exam. Exam will be a reflection of what you have done all across your year. तो आपकी बात will, I'm sure कि a lot of people will get motivated by what you like it said, this exam is a marathon, not a sprint. दौड़ते रहना पड़ेगा। That's true. तभी तो कमिटमेंट और फोकस की बात आती है। एंड एक जो बहुत अच्छी दीपांकर बता रहे स्टूडेंट सबको आपको कि मेक श्योर दैट यू सराउंड योरसेल्फ विद दोस पीपल हु एक्ट्स एज अ सपोर्ट सिस्टम, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको उस डायरेक्शन में रखे, विच विल हेल्प यू टू गेट योर ड्रीम। तो दीपांकर एक और चीज जो मैं जानना चाहूंगा कि one of the biggest tasks while preparing for prelims examination, let's try to focus on prelims क्योंकि अभी 2 महीने में prelims ही आ रहा था, is revision. So how exactly, I mean, how did you used to go about in terms of revising such a big syllabus? Because you have current affairs now, about 50% of the paper is just current affairs. So you have current affairs of not just 12 months, possibly of 14 to 15 months now, from which the UPSC prelims are asking question. Then you have your Lakshmikant, you have your Spectrum books, you have all these books, all these subjects to be covered. तो रिवीजन की आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती थी मेनली फॉर द लास्ट 2 months? See, I will tell you, रिवीजन के बारे में एक बात की, रिवीजन इज मोर और लेस लाइक एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहली बार रिवाइज करोगे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, दूसरी बार करोगे ऑलमोस्ट उसका हाफ लगेगा, तीसरी बार करोगे मतलब अल्टीमेटली इफ यू रिवाइज इट 6 or 7 टाइम्स, आपकी रिवीजन स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि आप एक पूरी की पूरी 600 पन्ने की किताब आधे घंटे 45 मिनट्स में रिवाइज कर डालोगे। दैट इज ट्रू। So the only thing about revision is that you have to do it multiple times. The more you do it, the faster and the better you get at it. And yes. So you used to make your revision notes, short notes, flow chart, something of that sort. No. करंट अफेयर्स के मामले में मैं जब पढ़ता था पहली बार, उसी वक्त मैं उसको हाईलाइट कर लिया, स्क्रिबल कर लिया, क्रॉस रेफरेंसिंग कर ली, पीछे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख लिया, तो उससे मेरा करंट अफेयर्स रिवाइज होता रहता था। मैंने नोट्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बनाए थे, काफी कंसाइज थे। नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि आपको उसको रिवाइज करने में कम वक्त लगे। तो अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की नोट्स बना रहे हो तो आप 50 पन्ने में उसका पूरा नोट्स बना लीजिए, ताकि आप 4 घंटे में 3 घंटे में उसको रिवाइज कर सके, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। इवन अगर आप करंट अफेयर्स का मटेरियल पढ़ रहे हैं और आप जो प्रिंट आउट है उसके ऊपर हाईलाइट या स्क्रिबल या कुछ कर रहे हैं, तो आप इंपॉर्टेंट पोर्शंस को हाईलाइट कीजिए, अगली बार पढ़िए तो अपने आप को कन्विंस कीजिए कि मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पोर्शंस ही पढ़ूंगा, तो आपकी रिवीजन की स्पीड बढ़ेगी। टेस्ट लगाइए, लास्ट की 2 महीने में टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्कॉलर की किसी भी अच्छी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। आप टेस्ट इज अ फास्ट ट्रैक मेथड ऑफ रिवाइजिंग, एंड लाइक आई सेड, प्रायोरिटाइज कीजिए थोड़ा। लास्ट टाइम पे आई यूज्ड टू थिंक कि ठीक है साइंस एंड टेक या आर्ट एंड कल्चर में आएगा, जो अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है। आप इन सब चीजों पे जिनका कॉस्ट बेनिफिट कम है उन पे फोकस ना करें। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगा कि आपने जो पढ़ा है
उस पे आप भरोसा करें। लास्ट टाइम पे एक सॉर्ट ऑफ फोमो हो जाता है लोगों को, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि ऐसे कई सारे लिस्ट्स आ जाते हैं, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, या 1 साल का कंपाइलेशन आ गया, या 6 महीने का कोई कंपाइलेशन आ गया, करंट अफेयर्स 1 ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आप अपना जो आपने प्रिपेयर किया है वो सब साइड रख देते हैं और उसके ऊपर चले जाते हैं कि ठीक है ये तो आता है, अब मैं वो 1 ईयर वाला कंपाइलेशन करूंगा। ऐसा ना करें, आपने जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखें, उसी को अपडेट करते रहें, उसमें नए करंट अफेयर्स, नए मंथ्स की नए आर्टिकल्स वगैरह ऐड करते रहें। एंड यूपीएससी डज नीड अ इन डेप्थ स्टडी। आप ऐसे कोई लिस्ट और कंपाइलेशन को प्रिपेयर करके ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। Okay. So basically, you need to be honest to the strategy that you have made, is what you're trying to say. And you should not get too diverted, but everything, that flood of resources that is being thrown at you. घबराना नहीं है आपको ये सोच के अरे मैंने ये नहीं पढ़ा, वो जो आपने fear of missing out बोला, वो बिल्कुल सही बात बोली आपने. With respect to one of the things that you mentioned, that one of the aspects for you in terms of making short notes was या तो आपने short notes खुद बना लिए, या फिर जो आपने टेक्स्ट पढ़ी है उनको इस तरीके से हाईलाइट किया है, वो हाईलाइटेड पोर्शन ही शॉर्ट नोट का काम कर रहे हैं। अब यहाँ I'll tell you, I just want to add something on this. मेरा जो करंट अफेयर्स था उसकी मैं प्रिंट आउट निकालता था, वो वन साइडेड प्रिंट आउट होती थी। सो देयर यूज्ड टू बी प्रिंटेड मटेरियल ऑन वन साइड एंड पीछे साइड ब्लैंक होता था। तो मैंने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ आ गया, तो मेरे को याद है कि ये मे की करंट अफेयर्स में था सॉरी, तो मैं उसके पीछे जाकर स्क्रिबल कर दूंगा वो। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेड है कि आप 600 वर्ड्स के आर्टिकल को 40 वर्ड में कंडेंस कर सकते हैं, इतना एक्यूमेन है आपके अंदर। तो वो एक तरह से वो नोट्स ही बनते जाते थे मेरे, और उसमें क्रॉस रेफरेंसिंग करता था मैं कि अगर मैंने मई में कुछ पढ़ा, मेरे को याद आया इससे रिलेटेड फरवरी में कुछ आया था, तो मैं लिख दूंगा रेफर टू फरवरी पेज नंबर सो एंड सो, और फरवरी में जाके लिख दूंगा रेफर टू मई पेज नंबर सो एंड सो। वो क्रॉस रेफरेंसिंग करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको रिकॉर्ड कीपिंग भी तो बहुत मेटिकुलसली करनी पड़ती थी। तो करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन्स ही पढ़ता था मैं, और कुछ डेली ईयरली पढ़ता नहीं था। और हर साल के 12 करंट अफेयर्स आप उनकी स्पाइरल बाइंडिंग कराइएगा तो 4 महीने का करंट अफेयर्स एक स्पाइरल बाइंडिंग में आ जाता है। तो 3 किताब एक साल के लिए, 3 किताब आप एक साल के लिए पढ़ सकते हैं। 2 साल का पढ़ना है 6 किताब पढ़ सकते हैं। So this again is something very important for students to learn. The idea of studying current affairs is not just कि आप एक chronology में खत्म करते जा रहे हैं. You should be able to interlink new developments with respect to what you have already studied, and some way find a way in which you are able to like make a note out of it. कि भाई अगर हमने अभी अगस्त में कोई न्यूज़ डेवलप हुई है एंड हमने मार्च में कोई न्यूज़ देखी थी जो लिंक्ड है, तो या तो मार्च में लिख दीजिए या फिर अगस्त में लिख दीजिए। आप दोनों में लिख दीजिए, क्रॉस रेफरेंसिंग अच्छे से कीजिए। Very nice. One more thing, what students would actually want to know is that जब हम आखिर के 2 महीने में let's say for some subjects हमारी तैयारी थोड़ी कम है, how exactly do you go about it in a manner in which ऐसा भी ना हो कि हम एकदम blank है? आप मेरे सवाल समझ पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है। किसी सब्जेक्ट का एग्जांपल, आर्ट एंड कल्चर होता है जनरली एक सब्जेक्ट जिसमें लोग दे जस्ट यू नो आई मीन आई पर्सनली बिलीव, क्योंकि लोग अवॉइड कर रहे हो सब्जेक्ट को फॉर द रीजन उनको बहुत ट्रिकी लगता है एंड दे थिंक यार आखिर में कर लेंगे आखिर में। ऑन द सेम वे इकोनॉमिक सर्वे हो जाता है, जनरली पीपल अवॉइड दैट टिल द एंड एंड सडनली एक पैनिक आ जाता है। वैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज है फॉर एग्जांपल, वो लोग तब तक पोस्टपोन कर रहे हैं जब एकदम लेट हो गया एंड देन दे आर गोइंग इट। तो इसके लिए डू यू लाइक कैन यू सजेस्ट समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स? मैं तीनों के लिए अलग अलग मेथड बताऊंगा। इट कैन नॉट बी अ ब्लैंकेट अप्रोच फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। आर्ट एंड कल्चर का ऐसा है कि अगर आपने थोड़ा बहुत आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो उसमें आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, द्रविड़ स्टाइल, नागर स्टाइल, ये सब हिस्ट्री में ही कवर हो जाता है। उसके अलावा अगर आप बिल्कुल पैनिक कर गए, बिल्कुल वक्त नहीं है, तो करंट अफेयर्स में जितना आर्ट एंड कल्चर कवर हुआ है पिछले 2 साल में वो कर लीजिए। डोंट गो, वो कर लीजिए। उसके बारे में थोड़ा गूगल विकिपीडिया वगैरह पे पढ़ लीजिए। डोंट गो फॉर एन इन डेप्थ स्टडी किसी मोटी किताब को उठाकर। लास्ट के 2 मंथ में वो एडवाइजेबल नहीं है एज पर मी। इसलिए अपने नोट्स होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आपको जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उसमें हर महीने आई थिंक हर करंट अफेयर की मैगजीन में दे हैव आर्ट एंड कल्चर सेक्शन। कोई भी आप अच्छे इंस्टीट्यूट का लेंगे तो उसमें एक आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन होता है। द नेक्स्ट वाज एक और दूसरा सब्जेक्ट क्या था? जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, जैसे गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे, राइट। इकोनॉमिक सर्वे, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि इट प्लेज अ मेजर रोल इन मेंस एग्जामिनेशन, द मेन एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में उसका रोल है बट उतना बड़ा रोल नहीं है उसका।
तो अगर आपको लग रहा है कि आप इकोनॉमिक सर्वे नहीं कर पा रहे हैं, अगेन डोंट गो फॉर दैट इंटायर थिंग। आप कोई टेस्ट सीरीज उठा लीजिए इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर जो बनी हुई है किसी इंस्टीट्यूट की, उसके आप सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा गूगल करके पढ़ लीजिए, दैट इज इट। ये कर सकते हैं बेसिकली रिवर्स इंजीनियर कर लेने चाहिए उन सब्जेक्ट्स को। हाँ, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज नाउ, अब आई थिंक बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है गवर्नमेंट में, मोर देन 50 मिनिस्ट्रीज हैं, एंड हर मिनिस्ट्रीज में इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। नाउ अब अगर आपके पास 2 महीने का टाइम बचा है, तो यू कैन नॉट बी गोइंग फॉर सम ऑब्सक्योर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, उतना वक्त नहीं होता है। तो आप एटलीस्ट जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जिसको काफी पॉम्प एंड शो के साथ गवर्नमेंट ने हर जगह एडवर्टाइज किया है, जैसे उज्ज्वला योजना हो गया या फसल बीमा योजना हो गया, समथिंग लाइक दैट, उनको आप जरूर अच्छे से कीजिए, उनको आप बिल्कुल अच्छे से कीजिए। ये फ्लैगशिप स्कीम्स के बाद अगर वक्त बचता है, तो 1 साल के अंदर जो नई स्कीम्स आई है उनको कीजिए, बाकी को छोड़ सकते हैं। फ्लैगशिप स्कीम्स को यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव, उसके बाद नई स्कीम्स कर लीजिए। Essentially, we need to prioritize what exactly are the topics we'll be covering the last 2 months, अगर हम लोगों ने ठीक से उस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं की है। तो जैसे आपने गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात की, जो करंट अफेयर्स में है, जो फ्लैगशिप है, और लेट्स से जो बजट में अनाउंस किए गवर्नमेंट ने, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस लेती है कि ये तो जरूर पढ़ के जाइए, बाकी का जितना हुआ नहीं हो, बट ये जरूर पढ़ के जाइए, सो दैट यू आर गिविंग योरसेल्फ द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि हम इसको मतलब क्वेश्चन जो आएगा तो इसी से आएगा। True. Okay. So, Dipankar, so we'll just now cover all the questions which the viewers have asked us. So, okay, so Shivangi Garg has asked us about current affairs. I think that we have covered. And then strategy for last 1 month वो भी cover हो ही गई है। हाँ, एक फरहान राजी पूछ रहे हैं कि NCERT कौन सी क्लास से हमको पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, and how important is NCERT in the preparation? NCERTs are important. आप क्लास 9th onwards पढ़ सकते हैं, 6ठी क्लास तक जाने की कोई जरूरी नहीं है। बट आई वुड वांट टू ऐड अ डिस्क्लेमर टू दिस, सिर्फ NCERT पढ़ के आजकल काम नहीं चल पाता है। आप यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो बहुत डायनेमिक हो गया है। NCERTs आपका बेस बिल्ड करते हैं, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट सिर्फ और सिर्फ NCERT से काम नहीं चलता है। तो आप क्लास 9th onwards क्लास 12th तक NCERTs पढ़ सकते हैं। कुछ है जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th की, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए अपना पढ़ना, या फिर उसमें काफी सारी यूटिलिटी कर्व्स और देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई, बहुत सारी चीजें जो उतना इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली, और यू विल फिगर आउट कि कौन सी NCERT थोड़ी अनइम्पोर्टेंट से लग रही है, बट खास करके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब तो पढ़ना ही चाहिए 9 से लेकर 12 तक। And what I think the criteria should be previous year questions, जहाँ पे आप इस चीज को गेज कर पाए कि essentially कौन सी NCERT कितनी relevant है for the purpose of the exam. Right. But I would again say कि don't just rely on NCERTs, सिर्फ उससे काम नहीं चल पाता है। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जो उस पर completely rely भी करते हैं, उसके अलावा उनके खुद की कोचिंग के नोट्स होते हैं। मैंने क्लासरूम कोचिंग कहीं नहीं की, टेस्ट सीरीज लिखे थे मैंने, तो मेरे ऐसे कुछ नोट्स वगैरह नहीं थे ऐसे कोई नोट्स वगैरह, तो मैं NCERT से थोड़ा आगे हट के भी पढ़ता था। पढ़ते थे आप, वेरी नाइस। फाइनली जो लास्ट सवाल हमारा ये रहेगा that if you were to give some very important tip to the student that this is something that you need to follow if you want to find success in this very very tough exam, what exactly will that be? जो आपने discover किया अपने experience में? Like I said, consistency is very important. प्रीलिम्स में लास्ट के 2 महीने में आप टेस्ट सीरीज लिखें, रिवाइज करें एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। मेरा टारगेट हुआ करता था प्रीलिम्स में कि आई विल प्रैक्टिस 10,000 क्वेश्चंस, सो दैट्स लाइक 100 टेस्ट पेपर्स। कभी पूरा नहीं हुआ ये टारगेट मेरा, बट स्टिल 6,000-7,000 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए थे लास्ट के 2-3 महीने में। सो एवरी अदर डे आई वाज राइटिंग अ टेस्ट लिखना इज नॉट द पॉइंट। टेस्ट को लिखिए, अपनी गलतियां देखिए, उसको एनालाइज कीजिए, कुछ मिस हो गया, कुछ नया मिला जानने को टेस्ट में, तो उसको कहीं जॉट डाउन कीजिए ताकि आप उसको बाद में रिवाइज कर सकें। सो टेस्ट लिखते हैं आप 1 घंटे 1.5 घंटे में, that's important, बट उसके बाद आपको 2-3 घंटे उस टेस्ट को एनालाइज करने में भी स्पेंड करना है। मेंस में लाइक आई सेड, फाइट फॉर दैट 1 or 2 एक्स्ट्रा मार्क्स। आपने प्रीलिम्स लिखा है, मतलब आपके पास नॉलेज, आप प्रीलिम्स में सिलेक्ट हुए हैं, मतलब यू हैव अ गुड नॉलेज बेस। बिना अच्छे नॉलेज बेस के आप प्रीलिम्स में सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो उस नॉलेज, और वो ऐसा नॉलेज बेस मेंस में 10,000 कैंडिडेट्स के पास है, तो यू विल हैव टू फाइट फॉर दैट 1 or 1.5 or 2 एक्स्ट्रा मार्क्स।
उसके लिए आप अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें। कंटेंट आपके पास आएगा क्योंकि आप प्रीलिम्स लिख चुके हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके पास कंटेंट ऑलरेडी है, और आप पढ़ेंगे जैसे जैसे धीरे धीरे आपके पास कंटेंट आएगा। अच्छी किताबें पढ़ें, कोई अच्छा करंट अफेयर्स का मैगजीन पढ़ें। आई वुड सजेस्ट कि डेली करंट अफेयर अपडेट्स, मुझे ऐसा लगता है ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप उसको लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाते हैं। और ईयरली कॉम्पाइलेशंस बहुत ही सिनॉप्सिस हो जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन दे हिट द लास्ट टारगेट। सो टू समराइज इट इन 2 or 3 points for prelims: revise and practice your question papers. For mains, focus on your presentation, the presentation of your answers, and fight for that 1 or 2 extra marks. And interview, so it's not, let's not talk about it right now. Maybe we'll have one more session if time permits you on interview Yeah, itself. Talk sure. about that. And Dipankar, absolute pleasure. बहुत खुशी हुई आपसे बात करके. Thank आपके you very work much. ethics and everything is, it requires a lot of character to actually appear in this examination and to be able to find success one after the other. It's something really, really special, Dipankar. All Thank the you very best. much. All the best. And I think I can say it on behalf of all the audience and everyone who's viewing right now that we are really proud of having officers like you who will be serving us in the near future. Thank you. Thank you. Dipankar. That's a very good compliment. Thank you. Thank you, Dipankar. All Thank you. the best to everyone. Thank you, Dipankar. Thank you very much. Absolute pleasure, man. You can